Very good evening, children. In differentiation, I started with chain rule, then logarithmic, then implicit. Now today I will be starting with parametric. Now you have learned circles, parabola, ellipse, hyperbola, straight lines, and you have learned about this equation. That parametric equation of parabola is at square and y is equal to 2at. That is, both x and y are depending on another variable t. That is, here t is my parameter on which both x and y are depending. This is the parametric equation for standard parabola. Then you also learned x equal to a cos theta, y is equal to a sin theta. Both x and y are depending upon theta. Parametric equation of standard circle. Then x equal to a sec theta, y equal to a tan theta, or y equal to b tan theta. There are various equations for parametric form. Let us learn today how to differentiate parametric equations. Okay. So again, I will be taking a mixed match of examples from easy to difficult. Okay. In all sums, you have to find dy by dx. So first one, it is given as x equal to at square, comma y equal to 2at. Now first you have to find both x and y are depending on which variable. So if you see, x and y both are depending on variable t. So I will differentiate the entire expression with respect to t only. Means now instead of x, I will applying formulas to t over here. तो मेरा dx by dt क्या आएगा? a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. देन मेरा dy by dt अगेन 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1. दैट इज I got dx by dt as 2at and dy by dt as 2a. But my objective was to find dy by dx. तो क्या करेंगे? dy by dx आएगा by parametric definition dy by dt upon dx by dt. ठीक है? So dy by dt कितना है? 2a. dx by dt कितना है? 2at. Correct? Therefore, I get dy by dx as 2a 2a cut 1 upon t. ठीक है? In exam they may ask you to write the answer in terms of x or y. तो x क्या, t क्या आ जाएगा? y upon 2a. You can write y upon 2a also. Similar है, खाली दो क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे. You differentiate by the common variable. ठीक है? Let's take second sum. x equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. So यहाँ पर पैरामीटर क्या है मेरा? थीटा. So here I'll mention differentiating with respect to theta. मेरा dx by d theta a कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin थीटा. dy by d थीटा a b कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos थीटा. So I have cos थीटा. Again by parametric form क्या करोगे? dy by dx is dy upon dx. तो b cos theta upon minus a sin theta. सिंप्लीफाई कर लो. cos upon sin क्या आएगा? cot. तो dy by dx is equal to minus b by a cot theta. ठीक है? Let's move to next example. Third one. Question is x equal to square root of a square plus m square, y is equal to log of a square plus m square. It is given that a is constant and m is the parameter. दिया रहेगा. ठीक है? So I differentiate with respect to m. To differentiate with respect to m, तो मेरा dx by dm चेन रूल से क्या आएगा? रूट का डेरिवेटिव 1 upon 2 root a square plus m square, then a square का डेरिवेटिव 0
एम स्क्वायर का 2m बराबर, तो 2 कट, dy बाय dm, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x है ना, इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, m स्क्वायर का 2m, ठीक है। अब फिर से dy बाय dx निकालेंगे तो क्या आएगा 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल अपॉन m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, m कट, इनको सिंप्लीफाई किया तो नीचे रूट आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू फर्दर एग्जांपल्स। फोर्थ वन, x इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। इफ यू गो टू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर पुणे यूनिवर्सिटी में, इसका ग्राफ आपको ट्रेस करना होता है तो साइक्लॉइड आता है कुछ, क्या आएगा साइक्लॉइड। अगेन थीटा मेरा पैरामीटर है तो मैं dx बाय d थीटा निकालूंगा, a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन थीटा बराबर। अब dy बाय d थीटा, b कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अगेन मेरा dy बाय dx क्या आ जाएगा b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो साइन थीटा 2 कट, तो आंसर आएगा b अपॉन a, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा बाय 2, दैट इज योर dy बाय dx। आया समझ में? यस। Now question is x equals cosec, it is cosec square theta, y is equal to cot cube theta at डेरिवेटिव at बोला है at theta pi by 6, थीटा कितना दिया है pi by 6। whenever that ask to derivative at a particular value, सबसे first thing है you have to differentiate, and after differentiating no need to simplify, directly put the value of theta, don't put the value of theta in the first step, if you put that you get the answer 0 and you will also get 0, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by d थीटा, चेन रूल आएगा, पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, देन कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस क्योंकि वैल्यू पुट करनी है। देन dy बाय d थीटा, अगेन चेन रूल आएगा, पावर कम्स इन फ्रंट तो 3, पावर रिड्यूसेस बाय 1 तो 2 हो गया, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे dy बाय dx पहले, तो dy बाय dx क्या आएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा निगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस भी बाहर आएगा 2, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। तो देखो कोसेक स्क्वायर कट, कॉट कट, माइनस माइनस कट, सो 3/2 कॉट थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 6, सो 3/2 कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 कितना होता है √3, सो आंसर आएगा 3√3/2, समझा? यस। नेक्स्ट एग्जांपल, आई थिंक 6th one it is, x equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 3। अगेन पैरामीट्रिक थीटा है तो डेरिवेटिव थीटा से लगाएंगे,
डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, समझ रहे हैं, डेरिवेटिव पार्ट एटलीस्ट यू शुड नो नाउ। नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा, पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, देन साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, करेक्ट। अगेन dy by dx निकालेंगे, दिस अपॉन दिस, दैट इज 3a sin square theta cos theta अपॉन माइनस 3a sin theta cos square theta, ठीक है। तो 3a कट, sin sin cos cos कट, तो ऊपर बचा sin, नीचे बचा cos, sin अपॉन cos क्या होता है, tan। मुझे dy by dx निकालना था एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो क्या बचा है, माइनस टैन थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 3, सो आंसर इज माइनस √3, अंडरस्टूड, यस। नाउ द फेवरेट एग्जांपल ऑफ द एग्जामिनर इज x इक्वल्स 2 cos t प्लस cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t at theta equals pi by 4, sorry, t equals pi by 4. Let's try. t पैरामीटर है तो t से डेरिवेटिव लगाएंगे, dx by dt, 2 cos t का माइनस 2 sin t, cos का माइनस sin 2t और 2t का 2, समझ में आया। देन अगेन dy by dt, 2 sin t का 2 cos t, sin 2t का 2 cos 2t, क्या किया, sin 2t का cos 2t, 2t का 2। अब dy by dx क्या आ जाएगा, 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 sin t माइनस 2 sin 2t, ठीक है। ये एक मिनट, एक्टिव माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा, है ना, 2 2 2 2 कट हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t कितना है, पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय √2, ये cos पाई बाय 2 हो जाएगा तो 0 आएगा, ये माइनस ये आएगा 1 बाय √2 प्लस साइन पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो ये आंसर आया 1 बाय √2, माइनस ऊपर ले लिया, ये √2 प्लस 1 बाय √2, तो √2 कट, आंसर आया माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। वी नेवर गिव इरेशनल नंबर्स इन डिनोमिनेटर, इसको करेंगे रैशनलाइज तो आपको सिंपलीफाइड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक प्रूफ वाले सम्स वेयर शो दैट इज गिवन, ठीक है। दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज सेम जो हमने अभी किया था, x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, बट इट इज आस्क्ड टू शो दैट dy by dx जो है इट शुड बी माइनस y by x टू द पावर 1 by 3, ठीक है। तो आई मेक इट लिटिल बिट सिंपल, मैं a नीचे लेके चला जाता हूं, पहले इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूंगा cos क्यूब t, यहां लिखूंगा y अपॉन a sin क्यूब t, आई टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, x बाय a 1 बाय 3 इक्वल टू cos t, y बाय a क्यूब रूट ले रहा हूं इसलिए 1 बाय 3 इक्वल टू sin t, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव लगाने से पहले स्क्वायरिंग करता हूं, क्या करता हूं, स्क्वायरिंग करूंगा, ताकि मेरा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो t गायब हो जाएगा जो मुझे आंसर में नहीं चाहिए। दिस इज वन वे। अनदर वे जो मैंने पिछले बार से सम में किया था, सो हो जाएगा x अपॉन a 2 बाय 3 प्लस y अपॉन a 2 बाय 3 इक्वल्स cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दैट इज 1, मतलब x रेज टू 2 बाय 3 प्लस y रेज टू 2 बाय 3
इक्वल्स a रेज टू 2/3। इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया देखो ये, तो हम पैरामेट्रिक से इम्प्लिसिट पे आ गए। देखो अब लगाओ डेरिवेटिव 2/3 x रेज टू 2/3 माइनस 1 2/3 2/3 माइनस 1 dy बाई dx नहीं भूलना है, a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। 2/3 कट हो गया और ये कितना आ रहा है x रेज टू माइनस 1/3, ये भी आएगा y रेज टू माइनस 1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। x को आप लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगा, सो y रेज टू माइनस 1/3 dy बाई dx x रेज टू माइनस 1/3 माइनस में y नीचे आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो dy बाई dx माइनस x अपॉन y रेज टू माइनस 1/3 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको उल्टा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा dy बाई dx माइनस y बाई x रेज टू 1/3। दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? बहुत सारे तरीके करने के, दिस वाज वन वे आई डिड। नेक्स्ट वन है x इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y है t माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, दो आई हैव नॉट टॉट यू इनवर्स डेरिवेटिव, हम थोड़ा फॉर्मूला अज्यूम करेंगे एंड विल सॉल्व दिस। तुम्हें बताना है शो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है शायद, e रेज टू x माइनस 1/2 और सीईटी में भी आया हुआ है। तो देखो मुझे आंसर में e चाहिए, क्या चाहिए मेरे आंसर में e, बट यहाँ कहीं भी डेरिवेटिव लगाने से e नहीं आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज आई विल मेक इट एज बेस e, वी नो दैट डेरिवेटिव कैन बी अप्लाइड टू बेस e ओनली। तो लॉग निकालेंगे तो ये e रेज टू x हो जाएगा, तो e रेज टू x क्या आएगा मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर, y को मैं ऐसे ही रखूंगा। नाउ आई डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t, तो e रेज टू x का e रेज टू x मैं डेरिवेटिव t से लगा रहा हूं इसलिए dx बाई dt, मैं डेरिवेटिव t से लगा रहा हूं इसलिए जैसे y को dy बाई dx आता है वैसे x को dx बाई dt, 1 का 0 इसका 2t। अब dy बाई dt का डेरिवेटिव क्या आएगा, t का डेरिवेटिव 1, अब tan इनवर्स का याद रखो 1 प्लस x स्क्वायर आता है, I'll teach you later on। तो dy बाई dt क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, कट कट। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 2t अपॉन e रेज टू x, है ना, दैट इज टी स्क्वायर e रेज टू x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t, करेक्ट। t t कट, मेरा आंसर आ रहा है t e रेज टू x अपॉन 2 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे रूट e रेज टू x माइनस 1 चाहिए, करेक्ट। तो कैसा करोगे, तो यहां पर देखो इसको यूज करेंगे हम लोग। अभी मुझे t नहीं चाहिए, आई ट्राई टू गेट इट ऑफ दैट t। पहली चीज e रेज टू x और 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों सेम है, तो e रेज टू x 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो गया, 20% काम हो गया, t बाई 2 देखो 2 आ गया। अब सिर्फ t को गायब करना है, तो यहां से मेरा t क्या आएगा, t स्क्वायर हो जाता है e रेज टू x माइनस 1 बराबर t स्क्वायर हो जाता है e रेज टू x माइनस 1। अब स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा t रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1, वही मैं यहां पर लिखूंगा रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज माई dy बाई dx। आया समझ में? इट वॉज इजी, थोड़ा सा ट्विस्ट था, एम आई राइट? यस, थैंक यू।